Now, before these schemes were launched, total outstanding debt of DISCOMs was 1,40,000 crore. 1,40,000 crore सभी स्टेट्स का मिला के। सभी स्टेट्स का मिला के अभी है। अभी देखिए 2 साल में इट इज 67,000। एक यूनिट प्रोड्यूस सप्लाई करते दे वुड लूज 50 पैसा, 51 पैसा। कोविड में वो थोड़ा बढ़ा, 69 पैसे हुआ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। अब पता है आपको कितना है? 15 पैसा। 15 पैसा। Can you think of any CEO or anyone making such a dramatic change? AT&C losses. This used to be in 2013 26%. 26% was total loss. वो उदय और इसके वजह से 22% तक आया था। अभी है वो 15%. You know the biggest culprits because of which government default, it's not the subsidy. गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, पुलिस हो, पंचायत हो, जो भी हो, they were not paying bills to DISCOMs. That outstanding itself was 1 lakh crore. इसमें एक कंपोनेंट है, आपको स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। स्मार्ट मीटर ऐसा होगा कि you can be easily tracked and you can do like prepaid. मतलब अगर नहीं पे किया तो straight away cut. A good economic policy is one where initially it will have very bad effects like GST, IBC. People will hate you for it. A smart meter, initially it will have very bad effects, but in the long run it will have good effects. Whereas a bad economic policy is one where initially you will have fabulous, matlab it'll look like milk and honey is flowing for, why did others not do it, but then you will have long lasting bad effect. Bihar mein kyun nahi free dete? Why don't they do free electricity in Bihar? There's nothing to give free. There's no money at all. State like Karnataka, which has done really, really well in terms of growth, why did freebies work? It shows, especially in, where did BJP lose? Regions like North Karnataka, Gulbarga and those regions. So they don't benefit a lot from these kind of top driven, there is trickle down. इसमें क्या होता है कि infrastructure led growth, this takes a long time to show up. Ayushman Bharat, for instance, the launch was good, but they have the right, and it's a decent program, very good program, and I have a paper which shows that it has actually improved people's lives. Abhi bhi only 10% of the people borrow from a bank. Modi ji ने तो बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, एक्सेस टू क्रेडिट सॉल्व नहीं हुआ है। मतलब किसी ने भी ये सोचा है, मतलब पहले सम ऑफिसर और सम गवर्नमेंट में somebody would have thought about it. Hats off to this person. नमस्ते सर, कैसे हैं आप? चल रहा है, all good. सर काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म जो किया है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती, हमने पिछली बार भी यही कहा था। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस बार शुरू में हम ये बात डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जीडीपी नंबर्स और उन सब पे आएंगे, मैक्रोस पे। सो लेट मी टेल यू, देयर आर टू स्कीम्स जो लोग इसके बाद भी देखना चाहते हैं, RDSS एंड LPS, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। RDSS एंड LPS का मतलब है लेट पेमेंट सरचार्ज। नाउ इसमें ये है कि दिस इज़ वन अमेजिंग लाइक अ केस स्टडी, रियल केस स्टडी, हाउ अ पब्लिक पॉलिसी can be implemented, taking into account with a holistic approach, understand the problem, come out with, learn from past experience, and then come out with a solution. So before I even tell you what the program is, let me tell you 3 metrics, 3 performance in power sector DISCOMs. There are 3 measures of performance. Very simple. One is outstanding dues. पहले जितना था, what they owe, these companies owe money to generating companies. Second is there is this measure called AT&C, aggregate technical and commercial losses. And the third measure is technical. It's not very technical. ACS ARR gap. मतलब supply or average cost of supply per unit versus average revenue realized. इसका gap. अगर revenue realized is lower than cost, then it's a loss per unit. These are 3 measures. Now, before these schemes were launched, total outstanding debt of DISCOMs was 1,40,000 crore. 1,40,000 crore. सभी स्टेट्स का मिला के। सभी स्टेट्स का मिला के अभी है। अभी देखिए 2 साल में इट इज 67,000, मतलब 50% से ज़्यादा कम हो चुका है आउटस्टैंडिंग। दिस इज लेगेसी लोन्स फ्रॉम गॉड नोस हाउ मेनी ईयर्स। नंबर 2, सेकेंड मेट्रिक, दैट इज इवन मोर ड्रामेटिक। ये जो गैप था ना, द ACS ARR, मतलब कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच पर यूनिट अगर इतना खर्चा हो रहा है और इतना इनकम आ रहा है, उसका गैप था 51 पैसे बिफोर कोविड। इतना एक यूनिट प्रोड्यूस सप्लाई करते दे वुड लूज 50 पैसा,
51 पैसा सभी स्टेट्स का एवरेज। सो दैट मीन्स पर यूनिट इनका रियलाइजेशन था 5 रुपीज़ 56 पैसा और खर्चा था 6 रुपीज़ 13 पैसा। किसी को भी समझ में आएगा कि आपको लॉस हो रहा है। कोविड में वो थोड़ा बढ़ा, 69 पैसे हुआ, ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड। अब पता है आपको कितना है? 15 पैसा। 15 पैसा। कैन यू थिंक ऑफ एनी CEO और एनीवन मेकिंग सच अ ड्रामेटिक चेंज? 15 पैसा। Something which was there like this for forever. This is 21-22. I don't have 22-23 numbers. एक ही साल में once the program and the target is to reach zero by 24-25. वो debt का भी target is to reach zero by 25-26. So in 1 or 2 years 60% achieved. This is like 80% achieved. Imagine from 69 paisa to 15 paisa. The losses. तो ये सब करने के लिए, पहुंचने के लिए, रिजल्ट लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा? तीसरा मैं बताता हूँ। तीसरा ये है कि ये AT&C लॉसेस, दिस यूज्ड टू बी इन 2013 26%। 26% वाज टोटल लॉस। वो उदय और इसके वजह से 22% तक आया था। अभी है वो 15%, 16%। तो उसमें टारगेट है 12 to see some technical loss you can't do anything, तो लॉस होगा ही होगा। So 12 to 15% is a target, almost achieved. So this is one scheme where within a year or year and a half of the launch, everything is almost achieved. And not surprisingly, stock prices are up. You know, I should disclose I'm an independent director on the board of Power Finance Corporation. So I'm not advocating that you buy the stock or do whatever, but the stock is up like 130, 140% after we spoke. So if somebody had taken your podcast seriously. But then you write the disclaimer that don't take stock advice from me. Sure. No, I'm not giving any stock advice, but I'm just saying the way things are going. Now, what they did is very simple. The reason I had to tell this because so many schemes, people promise all sorts of things and never achieve results. So simple thing, they said they realized what the issue is. Main issue is two. One is households don't pay bills. There are households which default, and more importantly, government departments. You know the biggest culprits because of which government default. It's not the subsidy. Government जो state government के जो departments है, police हो, पंचायत हो, जो भी हो, they were not paying bills to DISCOMs. That outstanding itself was 1 lakh crore. So, 1,40,000 crore outstanding है ना. If you added those the dues of one organ of state government to another organ, that itself was adding to 1 lakh crore. तो मतलब सरकारी प्रॉब्लम था। सरकारी मतलब लोग इतना चोरी नहीं कर रहे, पैसे इतने निकम्मे नहीं है जितनी सरकारें निकम्मी है। करेक्ट, एग्जैक्टली। निकम्मा में भी a strong word है, तो वो तो है प्रॉब्लम, राइट? तो इस स्कीम में इसने RDSS में ये किया, they put a condition. They put some 6-7 conditions. Every state DISCOM has to join this RDSS scheme. हाँ, RDSS में है क्या? Government made a budget allocation of 97,000 crore. Central government 97,000 crore from the budget, 3 lakh crore overall allocation. मतलब with market borrowing. So this 3 lakh crore kitty will go to state DISCOMs. This is the carrot, right? आपको 3 लाख करोड़ मिलेंगे improve करने के लिए and all that. Stick क्या है? ऐसे 3 लाख करोड़ ऐसे बांट दिया तो everybody would have taken 3 lakh crore and nothing would have happened. They said ऐसे ही नहीं मिलेंगे. This is performance based. पहले to be eligible आपको पहले आपका ये debt है ना उसको clear करना पड़ेगा. The government debt, state government debts that जो subsidy bill, state governments announce subsidies. अभी जैसे कर्नाटका में announce किया. पहले क्या होता था, ये लोग subsidy announce करते थे, DISCOM को पैसे नहीं देते थे. Now DISCOM has to borrow from generating companies जो होते हैं, DISCOMs would not pay generating companies. Now उनके पास then if they don't pay generating companies, there is no investment in the power sector. This was a cycle. Now they said to qualify into this scheme, you have to clear all your dues. आप जो मन में आए सब्सिडी अनाउंस करो, but you have to pay to the DISCOMs. आप फ्री में दे दो, उसके एक्स्ट्रा पैसा दे दो लोगों को, दैट सेंट्रल। तो मतलब जब आपको स्कीम में पार्ट बनना है, उससे पहले आपको क्लियर करना था, ये लेगेसी क्लियर करना है, ठीक है। आगे से भी जो भी आप सब्सिडी जो भी आप अनाउंस करोगे आप कर लो, खुद ही देना है, खुद ही देना है। ओके, डिस्कॉम से ऊपर नहीं डाल सकते और जेनकोस उनको नहीं देंगे, राइट? दैट इज द सेकंड। थर्ड, timely publication of audits, financial account. This itself was a big problem. They were not even publishing records. So like that they have put condition. And more importantly, most important, where it changed, this is different from Uday, is that इसमें आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप रिजल्ट दिखाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्रॉमिस किया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना होगा। करके फॉर एग्जाम्पल वन बिग कॉम्पोनेंट ऑफ दिस इज स्मार्ट मीटर्स। इसमें एक कॉम्पोनेंट है, आपको स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। स्मार्ट मीटर ऐसा होगा कि यू कैन बी इजीली ट्रैक्ड एंड यू कैन डू लाइक प्रीपेड।
मतलब अगर नहीं पे किया तो स्ट्रेट अवे कट। बट ये तो कहीं नहीं हुआ है अभी तो। 10 लाख 20 लाख इंस्टॉल हो चुके हैं। एंड सबको कोटा दिया था क्या इतना इतना करना? आप इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट हो, एक मिस्टेक इन्होंने ये किया, आपको पता है कहाँ शुरू किया? गेस, हिमाचल में, राइट बिफोर इलेक्शन। अच्छा, हाँ। तो हिमाचल में किया, बिहार में थोड़ा बहुत हुआ है, बट ये दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा तभी देगा जब आपने वो स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करके 1 महीना चला के आप दिखाओगे कि हमने इतना इंस्टॉल किया है और ये चल रहा है। सो नो मनी विल गो फ्रॉम द स्कीम अनलेस स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट। अगर मैंने तो फर्स्ट कंडीशन मैंने बोला डेट रीपे करना है, ओनली आफ्टर यू रीपे यू विल गेट सम ग्रांट। Similarly, only after you install, you get a grant. So that is very different. This scheme is so much very different from any other scheme where you actually do it, then you get money. तो इनको फायदा क्या हो रहा था? मतलब अगर जो ज्वाइन कर रहे थे स्कीम में, उनको क्या फायदा था? वो उनके ऊपर तो बोझ ही पड़ रहा है, आगे भी सब्सिडी नहीं दे सकते बेचारे। उसमें वही आता है LPS दूसरा। अच्छा। So there is another, that's why I said this is very comprehensive. उन्होंने एक दूसरा स्कीम निकाला LPS, लेट पेमेंट सरचार्ज। इसमें क्या होता है कि now after 2021 July, if a DISCOM does not pay, so they give time up to 2.5 months. 2.5 months from the day of 2.5 months from the due date, or 1 month from the time of production of bill. ऐसा कुछ है rule. If you don't pay, then you won't have access to power supply from the central GenCos. You will not be able to participate in power exchange. मतलब आपको power cut करना पड़ेगा। सो दिस इज कंपल्सरी। ये तो कोई पार्टिसिपेशन का सवाल ही नहीं है। तो फर्स्ट दे ब्रॉट इन दिस रूल, नाउ दैट यू डोंट हैव अ चॉइस। मतलब अगर आप मान लो अभी कर्नाटका में फ्री पावर है, इफ दे डोंट पे जनरेटिंग कंपनीज, पावर नहीं मिलेगा। सो यू कांट मैन्युफैक्चर पावर आउट ऑफ थिन एयर। बट डिस्कॉम्स कैन बी मतलब बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट or no, there are in Karnataka I know well, there are 5 of them. Okay. There is a BESCOM which is Bangalore, Chamundeshwari which is Mysore, there's a HESCOM which is Hubli, there's one in Gulbarga, GESM, one is MESCOM, my area, Mangalore. Right? These are DISCOMs, these are distribution companies. Now Karnataka government, if these companies default, पहले क्या होता था, government would announce free supply, wouldn't pay these fellows. मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, ये पूरा स्ट्रक्चर कि लोगों को पता नहीं है कि कहाँ से बिजली आती है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन कौन एंटिटी इन्वॉल्व होती है, तो वो चेन समझना जरूरी है। जनरेटिंग कंपनीज यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के, NTPC हो, कोल इंडिया हो, these are generating companies जो जनरेट करती हैं पावर जनरेट करती है। एंड देयर आर states also have generating companies, or mostly power. And there is a power exchange where states can buy this power. डिस्ट्रीब्यूटर जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये दिस वाज द फर्स्ट रिफॉर्म 2003 में किया था, जिसमें जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट याद है अगर आपने? 2003 वाला। 2003 वाला वाजपेयी जी रिफॉर्म एंड ऑल दैट। दिस वाज वन ऑफ द फंडामेंटल रिफॉर्म्स वेयर दे सेपरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन। तो पहले क्या होता था कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्टेट गवर्नमेंट वुड अनाउंस सम फ्री, फार्मर फ्री, सभी जगह फ्री है ना, दे वुड नॉट पे दिस डिस्कॉम्स। Now these DISCOMs would either default on payment to generating companies or borrow from PFC or some bank, and banks are in trouble, would not pay. This is why this debt accumulated. Abhi LPS rule is such that if you don't pay, you don't get power. As straightforward, like any other private player. That was the first tick they brought in. Now they said that, look, now we'll give you some help to improve. तो ये 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ मिल रहा है. It's not a small amount. This will go from center to state. So you said, why should state governments do it? Because they're going to get 3 lakh crore. Now, but you will get 3 lakh crore only if you meet this condition. First condition, पहले accounts दिखाओ. पहले past dues है उसको clear करो. तुम्हारे जो government departments, what they have to pay to DISCOM, वो pay करो. Right? We will help. And then for that, other PFC and REC, they lend for it. ऐसा नहीं है कि you will have to bring money all together straight away. And then do all these reforms. So there is no, state governments can still announce free power. Only thing is they can't ride on DISCOMs. They have to find money elsewhere. So that's the scheme, and dramatic results. LPS and RDSS together, and ये तो 2 घंटे इसी में निकल जाएंगे if we talk about it. But I urge people, especially students of public policy, I'm writing a case also, that this is one scheme where they have learned from the past and combined both carrot and stick. Almost all, except Telangana and Karnataka, almost all states have joined. Karnataka must have joined now. I think Telangana is the only exception, if I remember. उनका क्या कारण है कि? तो यही है, तो
this if you join then you are subject to these rules. So maybe they don't want to do election आ रहा है or they learned from Himachal maybe. हिमाचल में क्या हुआ था? वो so they started with the last stage of the scheme is smart metering. That is the ultimate thing. If you do that, that is where इसमें if you ask लोगों को फील होता है कि कुछ हुआ है. लोगों को आता है और इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी दिखने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर भी. उसमें प्रोग्रेस अभी ज़्यादा नहीं हुआ. इफ यू आस्क मी सम आई एम गोइंग टू एंड टुडे लाइक लास्ट टाइम आई एंडेड विद अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट. दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंड विद अ स्लाइट कंसर्न अबाउट द वेरी सेम स्कीम. यहाँ तक तो परफॉर्मेंस हैज बीन फिनोमिनल. जहाँ तक पास्ट एक्यूमुलेटेड डेट को क्लियर करने का सवाल है, दिस इज डन अ फैबुलस जॉब. वो तो हो गया. बट गोइंग फॉरवर्ड अब क्या हो रहा है? द फाइनल फेज वॉज स्मार्ट 25 करोड़ हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में स्मार्ट मीटर लगना है. दिस इज अ टारगेट. अभी तक सिर्फ 20 लाख लगे, वो भी हिमाचल में इलेक्शन से पहले. तो किसका सोचता मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने ठीक इलेक्शन से पहले 2 महीने पहले बिहार में थोड़े बहुत है. बट इट इज नॉट हियर इज वेयर स्टेट गवर्नमेंट्स आर हेजिटेटिंग. दे आर ओके विद सो फार दे आर गिविंग रीजंस. लिस्ट नहीं दे रहे. जैसे पीएम किसान वेस्ट बंगाल, हाउ डिड इट अवॉइड? इट डिड नॉट गिव अ लिस्ट, राइट? दैट दीज थिंग्स यू कैन डिले. कोर्ट्स आर कमिंग इन द वे. यहाँ पे इट विल पिंच पीपल बिकॉज इसमें क्या होगा कि इफ यू इट विल बी प्रीपेड मीटर द डे इट्स यू सी, राइट? आई डोंट हैव टू टेल यू. मतलब वही रिचार्ज वाला काम हो गया ना. जैसे फोन रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज खत्म तो फोन की सर्विस कर सकते हो. आपको सिर्फ जी पे ऐसे दिखा के करना होगा, स्कैन करके पैसा तो जाएगा. And secondly, it can do a lot of other things like price discrimination. देश के कहीं sometimes demand is very high, sometimes it's not. So you can change pricing. जैसे ये search pricing, economically it makes sense, but they are not popular things. तो वहाँ पे ये रुका हुआ है अभी. I don't see much happening. So if we don't, if we falter at this step, then I think there is a problem. You know, I'm not asking people to sell their power stocks, but you have to track this implementation of this. अभी तो सिर्फ 20 लाख है. एक पोर्टल है प्राप्ति, and which is maintained by PFC and REC. You can look and see all these data are available in the public domain. If you go to Prapti, you will find all this. So if power sector enthusiasts, one thing is please see the progress of smart meters. अगर वो नहीं हुआ तो again these problems will resurface. इसका नाम यही है स्कीम का, RDSS नाम है स्कीम का. LPS is late payment surcharge, RDSS is that comprehensive scheme, and Prapti is the portal जहाँ पे आप ये सब मॉनिटर. ये एक ऐसी स्कीम है, इसको मतलब इसकी सक्सेस को भी ज़्यादा बताना नहीं चाहते क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि असलियत में कौन लेके आया था इसको. क्योंकि सक्सेस के साथ साथ ये एक अनपॉपुलर भी हो सकता है आगे जाके. अभी तो नहीं है, बट जैसे स्मार्ट मीटरिंग का आपने एग्जांपल दिया, तो वो हो सकता है कि अभी तो लोग स्टेट्स को ब्लेम करेंगे कि यार मीटर तो यही लगा रहे हैं, है ना? इसीलिए वो नहीं करना चाहते. हाँ, इसीलिए बीजेपी रूल भी नहीं करना चाहते. और आई थिंक इसमें एक चीज तो है, थी पास्ट लेगेसी ड्यू क्लियरेंस इज डन. वो तो अचीवमेंट हो चुका है. दैट इज वन अमेजिंग. एक बार तो क्लीन स्लेट हो गया. और इन द सेंस 1,40,000 से 67 तक आया है. और अभी दे आर सपोज टू रीपे इन 48 इंस्टॉल. उसमें भी दे हैव बीन प्रैग्मेटिक. दे सेड सडनली मैं आई कांट आस्क यू फॉर 1,40,000 करोड़. वो नहीं होगा, किसी के पास भी नहीं. उन्होंने 48 मंथ्स का टाइम दिया एंड ऑल ऑफ देम आर पेइंग. अभी 2 साल हो गए और 2 साल ऐसे चला तो वो 0 हो जाएगा. वो तो अचीवमेंट हो चुका है. और ये ACS ARR मैंने कॉस्ट एंड रेवेन्यू का जो गैप है वो भी 15 पैसे, दैट इज वो भी हो चुका है. दीज आर कॉन्क्रीट अचीवमेंट्स. सो आई थिंक स्मार्ट मीटरिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है. लोग उससे नाखुश नहीं होंगे अगर आप पुलिस स्टेशन में स्मार्ट मीटर, बिकॉज 1 लाख करोड़ तो वही से है ना, क्योंकि वो तो सरकार का खुद का ही इशू है. हाँ, तो वहां पे तो डालो पहले. उसमें तो कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं है. जब वो व्हेन इट स्टार्ट्स एंड एग्रीकल्चर इज एक्सक्लूडेड. इसमें एग्रीकल्चर तो कोई किसी के पास हिम्मत ही नहीं है कि वहां जाके कुछ भी मीटरिंग करे. तो नाउ यू आर लेफ्ट विद हाउस होल्ड्स एंड बिजनेसेस. मे बी दे शुड स्टार्ट विद बिजनेसेस. वहाँ पे भी होता होगा कुछ, you know, that should be least unpopular. But eventually if you really want to see, I'm saying give a subsidy or whatever, but first stop leakage. अभी सबसे बड़ा जो इशू है, आपने कहा कि इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं ये लोग, लेकिन जो अभी पूरे देश में ही थैंक्स टू आम आदमी पार्टी एक ही इशू आ गया है कि सब लोग 200 से 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए कह रहे हैं. अपने हर मैनिफेस्टो में सब लोग करने लगे हैं.
और एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां कुछ ना कुछ कर रही हैं, या तो रेट कम कर रही हैं या फिर मतलब स्लैश टू हाफ कई जगह, और कई है कि भाई 300 यूनिट फ्री। अब पंजाब का जैसे एग्जांपल लें तो उनके पास तो वैसे ही खजाना खाली है, और उसमें आप फिर से 3 लाख करोड़ का उनका डेट है। जीएसटी आप देखो 1200 से 1800 करोड़ रुपए हर महीने का उनका जीएसटी। 1/4 ऑफ हरियाणा, 1/5। हाँ, तो 1800 2000 और हरियाणा का 8000 करोड़ तक पहुंच गया। उसके ऊपर आप देखो ये जो सब्सिडी बिल ऐड हुआ है, पहले तो था ही सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी में भी था, लेकिन अभी और 18,000 करोड़ 19,000 करोड़ ऐड हो गया है। बजट 12,000 किया है कि 12 ही लगेगा, लेकिन वो फिर हमको पता है रिवाइज हो जाते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा हर साल का ऐड होगा। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? अब आपने कहा कि जो डिस्कॉम्स हैं उनका तो क्लियर करना ही पड़ेगा, जेनकोस का क्लियर करना पड़ेगा, वो बिल तो क्लियर चलेगा, वो नहीं होगा तो पावर कट होगा, पावर कट होगा तो अनपॉपुलर हो जाओगे। एग्जैक्टली। तो वो भी एक फंसा दिया है वहां पे, तो उनको पैसा तो देना पड़ेगा। तो अब वो पैसा आएगा कहाँ से? और टू मेक थिंग्स वर्स, जीएसटी के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, जीएसटी काउंसिल में पास होगा। तो बेसिकली आपके पास 2-3 ऑप्शंस है, पेट्रोल पे डालो, लिकर पे डालो, एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, पेट्रोल एंड लिकर, रियल एस्टेट। पेट्रोल था, मतलब ऑयल था, ये इलेक्ट्रिसिटी था, और लिकर था। लिकर को कर सकते हैं, हाँ, कितना ही करोगे। हाँ, सो द प्रॉब्लम इज अगर करोगे तो डिमांड घटेगा, देन योर ओवरऑल। और इलेक्ट्रिसिटी पे तो वैसे ही सब्सिडी दे रहे हो, तो वहां से तो लॉस ही आ रहा है। सो अदर ऑप्शन इज टू कट अदर। सी, दिस इज द थिंग, लॉट ऑफ पीपल ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बहुत लोग करते हैं कि पंजाब की वजह से, केरला की वजह से, बंगाल की वजह से देश श्रीलंका हो जाएगा। नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ये हमारे जैसे ही है, अगर कुछ खर्चा करना है तो they have to earn or they have to borrow. जैसे अगर I and you have to increase our spending, we have to earn or we have to borrow. We don't have a choice. And government's earning is taxes. उसमें उसके ऊपर भी इनको फुल कंट्रोल नहीं है अभी जीएसटी के बाद। तो और द थर्ड ऑप्शन क्या है? कहीं और खर्चा कम करो। और क्या ऑप्शन है लॉजिकली? फोर्थ ऑप्शन इज प्रिंटिंग मनी विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज। इनके पास तो नहीं है, तो दे हैव टू, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू योर क्वेश्चन इज दे हैव टू कट ऑन अदर थिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज, पेंशन। जो आप बोल रहे हैं, पहले हम बात कर रहे थे, हाँ, बोल्ड एज पेंशन का जो है, वो सब कट करो, डिले करो, वही करना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कर्नाटका में फॉर इंस्टेंस सच अ प्रॉस्परस स्टेट, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि इस साल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फ्री दे रहे हैं। इस साल नहीं, कभी नहीं होगा वो। वन थिंग पीपल मिस अबाउट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज अ मिस्टेक लॉट ऑफ ऑफिसर्स डू व्हेन दे कंप्यूट द लॉज। बजट में, नेशनल बजट में भी, स्टेट का नहीं है, तो जब वो टैक्स कंसेशन देते हैं, मैकेनिकली कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने रेट 2% कम किया तो लीनियर जो कैलकुलेशन है, पहले अगर टैक्स 1 लाख था, अभी 2% कम किया तो 2,000 का लॉस होगा। ऐसा नहीं होता। इलास्टिसिटी भी एक चीज़ होती है, समथिंग कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब आप किसी का प्राइस कम करते हो, उसका डिमांड बढ़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर मान लीजिए किसी का मेंटल अकाउंटिंग ऐसा है कि कर्नाटका में कि आई एम गोइंग टू स्पेंड 1,000 रुपीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी, आई डोंट केयर, अभी आपने इतना फ्री कर दिया, आई विल स्पेंड अनदर 1,000, जो आपका पेड है ना, आई विल स्पेंड दैट। तो डिमांड बढ़ेगा। नाउ विद दिस स्कीम व्हाट हैपेंस इज स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू पे फॉर एवरी यूनिट यू कंज्यूम। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट से आई विल नॉट पे, जिनको पहले उनको तो टोपी नहीं पहना सकते आप। बट इनका डिफेंस इसमें ये है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट का भी डिफेंस था जब उन्होंने 200 यूनिट का किया था, कि जब 201 यूनिट होते ही वो पूरा बिल देना पड़ता है, 200 का भी देना पड़ेगा। सो बेसिकली इट्स नॉट फ्री। फ्री सिर्फ उन्हीं के लिए जो 200 से कम करेंगे। बहुत लोग 200 से कम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। पीपल डोंट 200 वाले, बिकॉज यू एंड मी आर रीजनेबली वेल ऑफ। नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पैक्ट भी पड़ेगा, राइट, कि भाई मैं 200 से कम रखूँ, तो शायद हो सकता है कि डिमांड कम हो सकती है। I don't know the real results, but ये एक argument दिया जाता है. That is a sensible argument, but there are 2-3 counters. One, the proportion of people who consume 200, Delhi is different. यहाँ पे तो you have a middle class kind of population, and imagine you are talking about GST collection, such a small population collects 5,000 crore a month, right? But think about other larger states like Karnataka. Karnataka has 7 crore people, maybe roughly 1 crore households, 1 crore, maybe 1.2 crore households. उसमें 5 या 6 लाख households होंगे जिनका 200 से ज़्यादा कंजम्पशन है, सिर्फ उतना ही है। बाकी लोग 40, 50, 30,
उस पे है. वहाँ पे स्कीम ये है कि लास्ट 10 months एवरेज. चोरी भी करेंगे ना कि 200 से कम करना है तो. थर्ड थिंग इज चोरी. मैंने कहा था ना ये 26% क्यों होता था. AT&C लॉस. T इज टेक्निकल, C क्या है कमर्शियल. मतलब if you release 100 units you get record only for 74 units. So वो बढ़ेगा at some point. So the demand will actually increase. And जो 20,000 या 25,000 करोड़ जो बजट में इन्होंने प्रोविजन किया उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा. That is what they have not accounted for. What they have not accounted for is the increase in demand. Incentivizing bad behavior. And see, market, whether you like market or not, one beauty about market is that it makes sure that resources go to people who value it the most. जब demand and supply, when you let it let it play its own role, the resources will go to people who value it the most. Now when you start artificially putting in taxes or this kind of price cap or ceiling or all kinds of stuff, it'll go to anybody and everybody, not necessarily those who value the most. Those who don't value the most will not use it efficiently. मतलब पानी चलता रहेगा, फैन चलता रहेगा, people will get out of the house. I'm sure this would have, all of us have come from lower middle class background. Imagine if you had left the fan on when we were kids. आपको तो मार पड़ी होगी. मुझे तो पड़ा है. You can't keep fan on. अभी तो nobody will care. Lights जलते रहेंगे. So that's another problem. So this is a danger. So but having said that, because now state governments have to pay, at least it will not impact power sector as a whole. Because at least these companies will not be impacted. The people of the state only will pay, of the same state, through other means. That's what they don't realize. Through cash or kind. kind में होगा. रोड नहीं होगा, एक्सीडेंट होंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं होगा, टीचर नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं होगा. So if you don't care for these things, you think free power is the only thing, then what? If people have voted, so it's fine, it's their choice. What can you do? अब अच्छा, एक बात तो हमने ट्रेंड देख रहे हैं कि जो ये अनाउंस कर रहे हैं फ्रीबीज लोगों के लिए, 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री. पंजाब और हिमाचल में तो देखा है, पता नहीं कर्नाटका में ये होने वाला है या नहीं. ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनका तो फ्री कर दिया 300 यूनिट, लेकिन जो बिजनेस का जो चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी का, उसका रेट बहुत बढ़ा दिया है टू कंपनसेट. वो सब्सिडी को कंपनसेट करने के लिए दे आर पनिशिंग द बिजनेसेस, विच विल इवेंचुअली फोर्स देम टू फ्ली समवेयर एल्स. अगर ज्यादा ही कर दिया, बिकॉज कॉस्ट ऑफ बिजनेस तो डबल हो गया ना. अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्राइस डबल हो गया, वो एटलीस्ट वो कंपोनेंट डबल हो रहा है, तो लोग क्या करेंगे. मतलब एटलीस्ट पंजाब और हिमाचल जैसी स्टेट में जहाँ पे वैसे भी प्राइवेट बिजनेसेस का मतलब वैसे ही खस्ता हालत है, तो वो या तो उत्तर प्रदेश या और जो जहाँ पे इंसेंटिव मिल रहा है बिजनेसेस को, वहाँ पे जाएंगे. और फिर से वही प्राइवेट नौकरियाँ रहेंगी नहीं, फिर से उनका डिमांड वही आएगी कि सरकारी नौकरियाँ दो. सो इवेंचुअली ये नुकसान तो सरकार को ही है और लोगों को ही है. इवेंचुअल पाथ इज बिहार, वेयर यू प्रॉमिस 10 lakh गवर्नमेंट जॉब्स एंड so I'm worried about Karnataka. At least 1 or 2 years it will sustain, because it's in a very strong position, one of the very strong state economies. But states like, as you said, Punjab, Himachal, Madhya Pradesh has learned lessons from Karnataka. They've already implemented all this. I worry more about Madhya Pradesh. मतलब कहाँ से, where are they? At least here you can see visibly some revenue. In Karnataka there is this cash cow called Bangalore, जिसको आप जितना भी treat it how much ever badly you want, still it will give you. This is like Lakshmi. You'll treat it very badly, but still it will give you money and you can sustain. Madhya Pradesh doesn't have even Bangalore to even they are going there. Now आपका सवाल ये है, उसमें भी you said power, वो कर्नाटका में हो चुका है. The first thing they did was they increased power rate for businesses. Yes, they are for all. So उसमें भी ये गलती कर रहे हैं. मान लीजिए पहले आपका 1000 यूनिट कंजम्पशन था और आपने इफ यू आर चार्जिंग 5 rupees, you got 5,000. Now you think if I charge 7 rupees, I'm going to get 7,000. Wrong. When you charge 7 rupees, demand will not be 1,000. It's not inelastic. Liquor maybe has inelastic demand. Others are elastic. At least in the long run, everything is elastic. Long run में, in the short run, yes, it's not that elastic. का मतलब है demand how it responds to price, right? So now not only will the cost go up, some of them will go out of Karnataka. They will find it profitable at some level. Or Karnataka, any other state that charges like this
that will lead to loss of jobs. And not only that, the products that are manufactured will become more expensive if you have to sell. So in a competitive market, you can't price more than beyond a level. So that means now with GST, every other state's products coming in, the local industry will suffer. Any state, this is a trap. So I tell whenever I get a chance to. मीठा जहर सा है ये. हाँ, मीठा जहर है, बट पॉलिटिकली भी सेंसिबल नहीं है. अगर आप ये करोगे, दिल्ली इज एक्सेप्शन, सब लोग दिल्ली के ऊपर जा रहे हैं बिकॉज दिल्ली वॉज रेवेन्यू सरप्लस. अब आपको पता है उतना हेल्दी नहीं है अभी जो पहले था, बट दिल्ली इज एक्सेप्शन बिकॉज यू मेक सो मच टैक्सेस देयर एंड यू डोंट हैव टैक्सेस भी है, और आपको पुलिस का 8,000 करोड़ रुपया है वो नहीं देना पड़ता. तो 8,000 करोड़ का ही सरप्लस है. अगर वही देना पड़े, उसके बाद अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. तो ये सब कहाँ, मतलब सेंटर टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. हाँ, तो वो एक फेज था जब बिल ज्यादा आ रहा था. अभी तो फ्री हो गया है, अभी कम आएगा बिल. In states where they were announced, bill will be lower. Like Delhi, कम आएगा, but people will get used to it. That kick will not last. ऐसे नहीं कि वो इंदिरा गांधी वाला जमाना. अभी भी लोग हैं, they will vote for Indira Gandhi because she gave land so many years ago. ऐसे लोग नहीं है आज. They will forget. They will get used to. But उसका जो cost है ना, मतलब in terms of reduction of other expenditure, रोड नहीं, सड़कें नहीं बनेंगी, आई सेड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर पे फर्क हो सकता है बिकॉज यू कांट रिक्रूट, यू डोंट पे सैलरी. अभी तो आप ओपीएस प्रॉमिस कर रहे हो, सैलरी तो दो पहले. सो बिकॉज दिस इज लाइक इन माई व्यू, गवर्नमेंट इन कर्नाटका से 50,000 करोड़, आई थिंक इट विल बी 70,000 करोड़. सिर्फ ओपीएस का नहीं, ओपीएस नहीं, ये 3-4 जो फ्रीबीज उन्होंने किया है, 60-70,000 करोड़ तो होगा. तो बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिसिटी डिमांड बढ़ेगा व्हेन यू डू फ्री, एंड देन एवरी ईयर यू हैव टू स्पेंड. दिस इज मोर देन द कैपेक्स बजट. कहाँ से लाओगे? तो दैट नेगेटिव इफेक्ट विल शो अप. मिल्टन फ्रीडमैन का एक मंत्र है, यू शुड रिमेंबर दिस. अ गुड इकोनॉमिक पॉलिसी इज वन वेयर इनिशियली इट विल हैव वेरी बैड इफेक्ट्स लाइक GST, IBC. पीपल विल हेट यू फॉर इट. ये स्मार्ट मीटर, initially it will have very bad effects, but in the long run it will have good effects. Whereas a bad economic policy is one where initially you will have fabulous, matlab it will look like milk and honey is flowing for, why did others not do it, but then you will have long lasting bad effect. So that's the time when you will come for re-election. Modi ji ye kyun nahi karte? Why doesn't Modi, aap samajh, it's not that he doesn't understand politics, right? Why doesn't he do a lot of freebies as soon as he get elected? He starts doing difficult things. I'm sure अगले 6 महीने में करेंगे बहुत. Because you don't need to do when you get elected. आपने अच्छे दिन प्रॉमिस किया, कुछ भी किया, डबल किया, ट्रिपल किया, कुछ लोग गाली देंगे, but you should do what is right. That's the right thing. Even if going back on some of your promises, but if you do what is right, is the right thing to do. And then during election time, अगर मैं और आप भी होते तो कुछ ना कुछ तो करेंगे. But these governments are doing reverse. आते ही सब फ्री देते हैं और उसके बाद फिर कुछ बचा नहीं करने के लिए. अब क्या करोगे? बिहार में क्यों नहीं फ्री देते? Why don't they do free electricity in Bihar? There's nothing to give free. There's no money at all. So उनका तो बिजली नहीं आती तो फ्री कितना ही देंगे. GST collection now it's a very good barometer. If people have to have a sense of economic activity, because GST is not just manufacturing and services. Agriculture थोड़ा छोड़ दीजिए. बिहार का क्या है? 1,500 करोड़, 10 crore, 11 crore population, less than Jharkhand, and then कहाँ से दोगे आप फ्री? मतलब बिहार में if they promise they will give 2,000 rupees per month, where is the money? You will have to default on salaries the same month. The Karnataka you can get away because there is money for at least a year or so. So either I hope after Lok Sabha they default in the interest of, I don't care who is in power or who is not. I hope after Lok Sabha they should default on this and still get into the proper governance, because 13 to 18 Congress economy was not it was not that bad. They didn't do, they did this, 13 to 18 they were very clever. It was marketing. So they got the central government's food, that 2 रुपए वाला, 2 रुपए को free करके they claimed everything is theirs. So they did all these kind of things. So that did not, while they did all this, that did not distort the health of the government. 13 to 18 they ran a decent government. And that's why they didn't lose very badly also. But this is going to be a disaster. I'm hoping after Lok Sabha they come into senses. And in Madhya Pradesh I worry even more. The Karnataka, you can still make a case, right? What if there is a crazy IT boom?
बैंगलोर विल स्टिल, लक्ष्मी फिर से सेमीकंडक्टर आ गया, कुछ आ गया. अभी देखो उनका, हैव यू नोटिस्ड, बिकॉज यू लुक एट GST केयरफुली, 6-7,000 crore था कलेक्शन, नाउ इट इज 12-13,000 crore. लॉट ऑफ पीपल ब्लेम बोम्माई एंड ऑल. ये फ्री देने के लिए पैसा आ कहाँ रहा, तो कहाँ से आ रहा है? This 3-4 years of Yediyurappa and Bommai, and even previous Siddaramaiah, for instance, the economic growth Karnataka has achieved is fabulous. You know, per capita wise, it's among the large states. It's very close to Telangana. Goa छोड़ दीजिए आप, it's an exception. So I'm worried. Good states going down the drain, and bad states, I don't know, for the badly governed states. So this is the worrying. In this backdrop, RDSS and LPS, what they make sure is at least they will protect spillover. अगर आप आपके स्टेट में ऐसे कुछ कर रहे हो, बाकी लोगों को इससे फर्क इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. अगर सेंटर पे फर्क पड़ता है तो देन एंटायर कंट्री सफर्स. नाउ यू डू योर फ्री पीस, यू वोटेड फॉर इट, यू सफर. ये भी सही है. अच्छा, अभी हमने पावर सेक्टर वाली बात कर ली. मैंने कहा ना तो बहुत लेंथी हो गया. तो अभी आते हैं जो लेटेस्ट इकोनॉमिक फिगर्स आए हैं. 7.8%, 7.8% GDP फिगर्स, ग्रोथ उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ एमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स बोल रहे हैं कि फेक है. तो आपका असेसमेंट क्या है? लेट्स नॉट कमेंट ऑन दीज पीपल, वो तो उनका चलता ही रहता है, तो उनका चलता रहता है. बट आपको कैसे दिखता है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है? क्योंकि जब हम सर्विसेज PMI देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं, मतलब ऐसा मतलब न्यूज़ ही आती है कि 15 मंथ हाई, 16 मंथ हाई, हमेशा बढ़ता ही रहता है. आपका सब्सक्राइबर भी देखिए वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितनी इकोनॉमी बढ़ रही है. लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो आई थिंक इट वाज हाफ. सो एंड योर ऑफिस आल्सो हैज बिकम नाइसर. तो ये मतलब कहाँ जा रहा है इकोनॉमी को देखें? नहीं, आई एम सेइंग द रीजन, ऑल्दो आई सेड हाफ जोकिंगली, बट this is one way we can see. We don't live in the US, and we don't have to say only based on numbers. We can see when they say infrastructure, it is led by government capex. We can see, you know, you can go and see highways, there is growth, railways there is growth, you know, airports are coming. So I don't think, पहले आप उनका ये argument था जो लोग इसको criticize करते थे, export नहीं बढ़ रहा है, bank credit नहीं बढ़ रही है, deposits नहीं, अभी वो भी है. Bank credit is up 15% year on year. You know, 143 lakh crore is bank credit. It used to be 120 lakh crore a couple of years ago. So bank credit is, people are borrowing and going to, it's not just they are borrowing only on credit cards. Credit card is a very small component. There is private investment is also picking up. So I don't know whether it is 7.8 or 7.6 or 7.3. इतना precise measurement कहीं हो ही नहीं सकता. It's an estimate. So to that extent, if you say it's an incorrect number, yes, it's an estimate. तो nobody can say it's, ऐसा नहीं कि आपको फीवर है 100 and whatever, इतना precisely GDP cannot be measured. But by and large, directionally, I think this growth number makes sense. But is it well distributed? I may have some concerns. But I don't think the growth number, you know, for instance, the real GDP was 40 lakh crore. I don't think it's a bad approximation. You know, I don't think there is anything systematically wrong with these numbers. अच्छा, तो आपने कहा कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या है इसका, कि कौन से कंपोनेंट पे आपको मतलब चिंता है? अब अगर आप देखिए इस क्वार्टर का, दिस इज ओनली वन क्वार्टर, देयर आर 8 components of GDP. And any of your viewers, if they're really interested in knowing actual GDP numbers, they should get into Press Information Bureau. Press Information Bureau, there are 4 times in a year when GDP numbers are announced. May 31st, August 31st, November 30th, and February last date. So 4 times quarterly. The rule is 2 months after the end of the quarter. Annual आएगा May 31st को. उस दिन आप Press Information Bureau में जाइए, MOPSI, Ministry of Program Statistics and Program Implementation, उनका नोटिफिकेशन होगा, उसमें सारा ये डेटा मिलेगा. There are 8 components. जो 8 कंपोनेंट है उसमें सबसे तेजी से जो बढ़ रहा है इस क्वार्टर में इज फाइनेंस, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज. उसका ग्रोथ है 12.5%. बाकी द नेक्स्ट बिग इज अदर सर्विसेज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, दैट इज ग्रोइंग एट 9.5%. मैन्युफैक्चरिंग जो है दैट ग्रोथ इज 4.7%. एग्रीकल्चर 3.5 is good only. You know, agriculture historically has been low. You
know 3.5 is not a bad growth for agriculture. पहले तो 2.5 होते थे. Agriculture has done reasonably okay. Manufacturing is 4.7%, right? So what I'm trying to say is post COVID जो growth है, it is still government investment driven and FDI and those kind of, it is going to some sectors. So this is one. I was very surprised. Again, I have too much bias for Karnataka because I am from Karnataka. I care a lot about the state and I care about Telangana also. So state like Karnataka, which has done really, really well in terms of growth, why did freebies work? It shows, especially in, where did BJP lose? Regions like North Karnataka, Gulbarga and those regions. So they don't benefit a lot from these kind of top driven, there is trickle down. इसमें क्या होता है कि infrastructure led growth, this takes a long time to show up. It will come eventually, but it will take a long time to show up. आम आदमी की जिंदगी में वंदे भारत का फोटो लेना अलग बात है. To have income sufficient to afford वंदे भारत will take some time. And बीच में अगर election आ गया, that's a problem. So I see that जो last 2 year का जो growth है, उसमें it has gone more to the upper layer than the lower side, because it's not anybody's fault, but the design has been like that. The focus has been growth, top led, infrastructure led. And as you know, today infrastructure, अगर road construction site में जाइए, half of it is machines. Half क्या? Everything is machine. पहले अगर road बनता था, I'm not saying it's a bad thing. It's a good thing only. You should use machines. But then factor of production, हम लोग model करते हैं which gets wage and rent, capital rent. The proportion of rent that goes to capital has increased than wages. तो वो कंपनी में जाके trickle down होके by the time it reaches the common man, it's going to take time. So that is why I'm a bit worried. तो पहले जो ये एक्सप्रेसवेज बनते थे, इसमें बहुत सारी मजदूर और वो सब काम करते थे, लेकिन अब बहुत सारा जो काम है मशीनों से हो रहा है. तो जो 20 साल पहले जो इन रोड के कंस्ट्रक्शन का एम्प्लॉयमेंट पे इम्पैक्ट था, वो आज नहीं है. आई वॉन्ट टू उसको थोड़ा अलग तरीके से मैं कहना चाहता हूँ. आज उससे ज्यादा है, लेकिन टाइम लगेगा. अच्छा. पहले तो डायरेक्ट था. वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट था. आज अब क्या होगा, क्योंकि रोड अच्छी तरह से बन रही है, जो लॉजिस्टिक्स आज थोड़ा समझने में इनडायरेक्टली बनेगा, बट मोर इफेक्टिव बनेगा, क्योंकि इट विल ब्रिंग डाउन, बिकॉज रोड क्वालिटी अच्छा होगा, इट विल सस्टेन. तो जो लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस है वो कम होगा, प्रोडक्ट्स के प्राइस कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट आएगा परमानेंट होगा, रोड के बाद भी होगा. मोर इंडस्ट्री. अब आप देखिए कहीं पे रोड बना, देयर विल बी सो मेनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड ऑल ऑफ दैट कमिंग अप. सो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज मच मोर देन बिफोर. बट 2 problems. इट विल इंक्रीज विद द लैग. टाइम लगेगा. आज रोड बनाया, आज ही नहीं होगा. मे बी 2 साल लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं. एंड रोड हैज टू बी कंप्लीटेड, उसके बाद ही होगा, तब तक नहीं होगा. एंड सेकेंड, आइडेंटिफिकेशन इज इनडायरेक्ट. पहले तो आपको डायरेक्टली आप बता सकते हैं इसमें रोड में हमने इतने मजदूरों को काम किया. अब जो होटल में काम कर रहा है रोड साइड में, उसको 4 साल 5 साल बाद उसको ये नहीं याद नहीं रहेगा कि ये रोड की वजह से उसका नौकरी. तो आइडेंटिफिकेशन इज इनडायरेक्ट, डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बट इट इज, एज आई सेड, दिस इज गुड. बट फील गुड फैक्टर जो लोगों में चाहिए, संतुष्टि जो चाहिए, वो अभी है नहीं, अभी नहीं आएगा, क्योंकि द वे इट वर्क्स इज लॉन्गर. इसका टाइम लॉन्ग. अभी देखिए, you are young, I was in my college during Vajpayee's time, and if you had read newspapers at that time, when India Shining campaign and all that, there was 2 years of drought, and the opinion among common people was not all that great. Economy was not growing well. But अब आप किसी से भी पूछो, how did Vajpayee do? Even those who don't like BJP, everybody has a reasonably positive. Not everybody. The opinion of अगर वाजपेयी जी contest today, if he could have, opinion about him is far better, even his economic performance, because now you see, because those things now everybody recognizes the second order, third order effects of his policies, whether it is telecom, whether it is Gramin Sadak Yojana, electricity, I told you. तब उन्होंने separate किया तो क्या फर्क पड़ा, पर अब दिख रहा है ऐसा. तो ये प्रॉब्लम है इसका. This will take time, and if people get impatient in between, and then somebody else comes and reverses all this, then this may delay things for another 10 years. And or may benefit someone else 10 years down the line. जैसे मैं बताता हूँ,
टेलीकॉम रेवोल्यूशन, वो लेके कौन आया? वाजपेयी जी। जो पहले तो कनेक्शन के लिए लाइन लगनी पड़ती थी, 2-2 साल 3-3 साल वेट होता था BSNL कनेक्शन के लिए। फिर ये जो टेली डेंसिटी बढ़ना शुरू हुआ, जो रिफॉर्म्स लेके आए वाजपेयी जी, अब वो धीरे धीरे 2008-7 तक मतलब दिखने लगा कि लोगों के पास मोबाइल आ रहे हैं। उसके बाद 2-3 साल में इतना मोबाइल का बढ़ गया, मतलब 2009-10 तक तो सबके पास ही लगभग एक मोबाइल हर घर में था। तो वो टेली डेंसिटी बढ़ने से बाद में बिजनेस पे और उन सब पे भी इम्पैक्ट पड़ा। मतलब GDP पे भी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए 5 साल बाद शायद उसका UPA को मतलब फायदा हुआ होगा। हाँ, तो as an academic, I won't, of course, personally I may have any bias or anything, but I am worried not about किसको क्रेडिट मिलेगा, वो होगा नहीं। जैसे मैं मतलब अगर देख पा रहा हूँ, अगर आप इन एक्सप्रेसवेज को देखो, दिल्ली से मुंबई का एक्सप्रेसवे जा रहा है, जामनगर से अमृतसर का एक्सप्रेसवे जा रहा है, 2 इतने बड़े एक्सप्रेसवेज राजस्थान जैसी स्टेट से गुजर रहे हैं। अब आप देखिए वहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरे राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग ना के बराबर है। लेकिन अब क्या होगा, मतलब अगर पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और लेबर अगर राजस्थान में किसी नागौर में या कहीं और आपको चीप लेबर मिल रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू से मुंबई के पास रियल एस्टेट आपका बहुत कम है। तो उस एक्सप्रेसवेज के पास जो SEZ, सो कॉल्ड SEZ का प्लान होता था, उस तरीके के इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनने लगेंगे। तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ से जैसे जम्मू कटरा का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, या यहाँ से पूरा कोलकाता तक का ही वो अलग अलग फेजेस में बन रहा है। यहाँ से वाराणसी तो हो ही गया है, तो यहाँ से वाराणसी आप 9-10 घंटे में पहुँच सकते हो। ये जो इम्पैक्ट इसके बाद जो आएंगे, मतलब 10 साल बाद इनका जो असर दिखना शुरू होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग पे कितना बड़ा होने वाला है, वो हम अभी एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, वो वही डिपेंड्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन क्वालिटी, वही मैं बोल रहा हूँ। तो देयर आर 2 वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एक है किनीशियन पर्सपेक्टिव, इसको डिमांड साइड से देखते हैं कि इट इंक्रीजेज मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। आप इतने लोगों को नौकरी दे रहे हो, इतने लोगों को, कंपनियों को बिजनेस दे रहे हो, तो इट इंक्रीजेज मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड दैट इंक्रीजेज डिमांड। एंड उसमें अगर प्राइजेस डोंट इंक्रीज, दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन किनीशियन इकोनॉमिक्स। इफ प्राइस इंक्रीज, उससे सिर्फ मान लीजिए डिमांड बढ़ा, प्राइस भी बढ़े, तो जस्ट इन्फ्लेशन होगा। इफ प्राइजेस डोंट इंक्रीज एंड इफ डिमांड इंक्रीजेस, then it'll lead to higher production and higher GDP in the short run. That's a short run effect of these kind of spending. That's a stimulus, fiscal multiplier, immediate. Long run में यही है, the cost कम होगा, यहाँ पे business आएंगे, they will establish near the highways. There is evidence for that. But that depends on how much, how effective is your implementation, how good is your quality, how quickly you finish, and so many other things, law and order, so many other things. मान लीजिए वहाँ पे law and order खराब हो गया, जितना भी अच्छा हाईवे हो, कौन वहाँ पे, इट्स नॉट जस्ट ओनली बेस्ड ऑन हाईवे। देयर इज अ वेरी नाइस पेपर, मुझे देख के पहले पसंद नहीं आया, बट क्या है, फैक्ट इज फैक्ट, यू हैव टू एग्री और नॉट। अशर एंड नौशाद, इट्स अ पेपर पब्लिश्ड इन अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू। ऑथर्स का नाम है अशर एंड नौशाद, आप आपके रीडर्स भी देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, इट्स अ वेरी नाइस स्टडी। जो सड़क योजना है ना वाजपेयी जी, दे स्टडीड सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ ग्राम सड़क योजना बिकॉज मेरे घर के पास भी जाता है। बिकॉज वो पहली बार ऐसा था कि शायद उस समय में पहुंचा है, उस समय मतलब 50-60% जनता कनेक्टेड ही नहीं थी। हाँ, देश से, इकोनॉमी से। हाँ, कनेक्ट किया था, बट दे हैव स्टडीड केयरफुली। शॉर्ट रन, वही सिर्फ शॉर्ट रन, लॉन्ग रन नहीं। उसमें ये है कि अगर आपका विलेज पॉपुलेशन इज मोर देन 5000, यू विल गेट ओनली इफ इट इज लेस देन 5000। 5000 से उसके डेफिनेशन एलिजिबिलिटी के लिए उसका पॉपुलेशन हैज टू बी लेस देन 5000। सो व्हाट दे डिड वाज दे स्टडीड विलेजेस just below 5000 and just above 5000. just above 5000 में रोड नहीं आया, just below 5000 में रोड आया। अगर जो आप और हम कह रहे हैं मिल्क एंड हनी फ्लोइंग, अगर ऐसा हुआ है तो इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना चाहिए, एग्रीकल्चर से ज़्यादा इंडस्ट्री जाना चाहिए, लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। 4 साल में उनको नहीं दिखा, उसके बाद हुआ होगा। 4 years from the time of implementation, they only find faster movement, migration, बट दे डोंट फाइंड एनी इम्पैक्ट ऑन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जहाँ पे रोड बना ज़्यादा इंडस्ट्री बने, जहाँ पे रोड बना वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में चले गए, या सबसिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग, ऐसा कुछ उनको नहीं मिला। एंड दिस इज रेप्लिकेबल डेटा। ऐसा नहीं है कि हम लोग दे आर डूइंग किसी प्रोग्राम को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
तो ये डेटा तो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई जाके उसको रेप्लिकेट कर सकता है. इट्स अ वेरी टाइट डिज़ाइन. 5,000 से ऊपर इट्स ऑन द मार्जिन. जो 5,000 से ऊपर थे, अगर इनसे इतना फर्क पड़ता तो देन ये 5,000 से नीचे वाले जहाँ पे ये रोड आए वहाँ पे यू शुड हैव सीन ऑल एग्जाम्पल्स होंगे. आई थिंक ये मुझे भी ये टू एक्सेप्ट दिस आई वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट व्हेन आई सॉ दैट, बिकॉज नहीं वही है ना, जैसे सड़क आ गई लेकिन बिजली नहीं है. हाँ ये तो मतलब वही सड़क आ गई, बिजली नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो कहाँ से काम करोगे? बिल्कुल. और मान लो कि अगर सड़क आ गई तो हो सकता है कि आप अपने बच्चों को वहाँ के स्कूलों में भेजना शुरू कर दें. और उसके बाद 10 साल बाद जब आपका बेटा अच्छा बड़ा हो जाए, बेटी बड़ी हो जाए, तब आपको उसका इम्पैक्ट पता चले. तो दैट इज नॉट इंक्लूडेड इसमें. नहीं है, दिस जस्ट 3-4 years. इम्पैक्ट होगा, इसलिए द लैग इज सो लॉन्ग कि यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. दैट इज द प्रॉब्लम. जब ये कुछ लोग आके बोलते हैं इससे इतना फिस्कल मल्टीप्लायर होगा, people have looked at very very carefully. जो especially those who speak on in favor of government, suddenly ऐसे कुछ example तो अब किसी चीज़ का भी आपको example मिल जाएगा. मतलब anything poison, somebody took poison, did not die, होगा कोई. Snake has bitten him 30 times. Snake died. But example is a point to illustrate. But आपको अगर causality देखना है एक डायरेक्शन से, आप ऐसे carefully study करना पड़ेगा. ऐसे ये आर्बिट्रेरी 5,000 लिमिट इसकी अगर है तो यहाँ पे दिखना चाहिए था. तो दिस इज व्हाट दे फाइंड, एंड कोई भी इसको रेप्लिकेट कर सकता है. दिस इज ऑल डेटा पब्लिकली अवेलेबल. उन्होंने डेटा भी पब्लिकली अवेलेबल किया है. अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू मैं शेयर भी कर सकता हूँ आपसे, पेपर मेरा नहीं है. दीज आर 2 scholars, सो अशर एंड नौसाद और समवन, आई फॉरगेट द नेम. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल. द इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ मे टेक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, बट उससे आई थिंक देर आर more the positive side of it is that or there are others which are immediate and far more effective. I think there are Ayushman Bharat, for instance. The launch was good, but they have the right, and they have it's a decent program, very good program, and I have a paper which shows that it has actually improved people's lives. But then if you can expand it and make it less cumbersome. आज क्या है कि if you're not well, you have to first go to a government officer, government hospital, वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है. Then go to private, you know. So they're seeing it like a cost minimization. इसमें 7,000 crore they are allocated. आयुष्मान भारत is an infrastructure program. Infrastructure मतलब सिर्फ रोड, एजुकेशन एंड हेल्थ से ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. अगर कोई एक चीज़ है जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, अगर आप लेफ्ट हो, राइट हो, किसी भी साइड के हो, कि नथिंग गिव्स एज मच रिटर्न एज एजुकेशन एंड हेल्थ. कुछ भी नहीं ऑन एन एवरेज. सो हैविंग स्टार्टेड दिस प्रोग्राम, एलोकेशन इज 7,000. वंस यू एलोकेट जस्ट 7,000 crore, देन आपको रेट कार्ड बनाना पड़ेगा. डॉक्टर्स के फीस पे आप ये डालोगे, मेडिसिन पे आप, दैट्स द ओनली वे यू कैन ट्रीट सो मेनी पीपल. सी यू कैंट से आई एलोकेटेड 7,000 crore एंड आई ट्रीटेड सो मेनी. कैसे किया? मतलब ऑब्वियसली यू गिव देम अ चीप ट्रीटमेंट, मतलब फोर्सिबली यूज योर गवर्नमेंटल पावर, तो क्वालिटी पे असर पड़ेगा इफ यू डू दैट. सो उस पे आई थिंक एलोकेशन ऑन दैट, देयर शुड बी समथिंग ऑन एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन. आई एम नॉट सेइंग मेरे स्कूल को पैसा दो, मतलब दैट शुड नॉट बी डन. वी आर वेस्टिंग लॉट ऑन हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एंड हेल्थ. एंड द थर्ड थिंग विच आई एम रियली in my area of research is access to credit. अभी भी only 10% of the people borrow from a bank. मोदी जी ने तो बैंक अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, बट एक्सेस टू क्रेडिट सॉल्व नहीं हुआ है. इफ पीपल, स्मॉल बिजनेसेस कैन गेट इजी एक्सेस टू क्रेडिट. मुद्रा है, आई नो यू विल कम टू मुद्रा, आई हैव अ पॉइंट ऑन दैट. दैट्स नॉट द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या प्रॉब्लम, मतलब एग्स कैसे सॉल्व हो सकते हैं? क्योंकि पहले हाँ बताइए. क्योंकि लोगों की इनकम्स उतनी है नहीं. जैसे गांव में कोई है और वो मतलब चाहे कि उसको एक्सेस मिल जाए क्रेडिट का और वो कुछ शुरू कर ले गांव, मतलब मोस्ट ऑफ इट इज, इफ यू लिसन टू द आइडियाज तो इतने सारे हैं कि बिजनेस जाके खोल दें और कोई खोलेगा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा वो. ठीक है, तो ये इसका प्रॉब्लम सोल्व कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये जैसे इन्होंने थोड़ा मुश्किल काम है, जैसे यूपीआई किया, इंफ्रास्ट्रक्चर. यूपीआई में गवर्नमेंट ने क्या किया? इट प्रोवाइडेड एन इंफ्रास्ट्रक्चर. Right, that's what it set up. Because market failure का, why you need government is because markets fail in creating infrastructure. One of the reasons. इसमें अभी मेन प्रॉब्लम ये है कि क्रेडिट, स्पेशली फॉर द इनफॉर्मल सेगमेंट,
कि it is very hard as a lender, like you said, that I cannot assess how good is your business. आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप GST से भी बाहर हो, बहुत सारे लोग. So there is no way I know that this is called asymmetry of information. आपके पास brilliant idea हो सकता है, आपका idea actually it could be great, but I have no I don't know anything about your track record, I don't know anything about your, I can't verify any of those. इसलिए जो मैं चार्ज, मार्केट जो चार्ज करेगी will be much more than what you can afford. You know, if you want a loan, a poor guy will, अभी microfinance में for example, they pay 27%. And loan sharks, they pay crazy. Loan sharks का आपको पता है, जो fishermen, and I'm from my coastal, you know, I can't speak for more than 15 minutes without bringing my place. God, I'm sorry. I'm from coastal Karnataka. वहाँ पे जो, imagine somebody is going for fishing. This guy borrows some, let's say 800 rupees, and he has to return 1000 rupees once he comes back. 7 days, 8 days. आप annualized interest calculate करो. It's crazy. This is the amount people are borrowing. Because bank is unable to lend to this person. Bank का जो system है, and उसका जो, and do you think returns are lower? No. There are careful studies. आपको पता है श्रीलंका में एक स्टडी हुआ, मैकेंजी एंड वुडरूफ, ये भी आप देखिए, इट्स पब्लिश्ड है, क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स. उन्होंने क्या किया, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं उनको $200 दे दे ऐसे फ्री में, $200 सबको नहीं, 1000 लोगों को, या रैंडमली सिलेक्टेड. ओके, सो दे रैंडमली सिलेक्टेड 1000 पीपल. दिस इज लाइक आपका वैक्सीन का जो ट्रायल होता है ना, किसी को शुगर पिल दो, किसी को एक्चुअल वैक्सीन दो, फिर देखो किसका बुखार किसका कम हुआ है. सिमिलर टेस्ट, इसको RCT बोलते हैं, रैंडमाइज्ड कंट्रोल, आपको तो पता ही है. तो दे सिलेक्टेड सम 1000 रैंडम स्ट्रीट वेंडर्स श्रीलंका में, एंड 1000 कंट्रोल ग्रुप, जो जिनको 1000 रैंडम स्ट्रीट वेंडर है, $200 या कुछ दिया टू, एंड दे आस्क देम टू इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल. मतलब आप कुछ टॉय बेच रहे हो तो $200 का एक्स्ट्रा खरीदो. आपको पता है उसका रिटर्न क्या है, मार्जिनल रिटर्न जो बोलते हैं, इज अराउंड 7% अ मंथ. 7% अ मंथ. 7% a month is compounded, is not 7 12 84%. It's some 120% a year. This is the kind of return they actually have. The small businesses have a crazy marginal return. And basically you can also benefit. The country can also benefit by having them into formal system. Yes. So if they can get a good quality loan, their income is going to go up like crazy. Only problem is right now there are two issues. One is screening. उनके बारे में information नहीं है किसी के पास. The second is monitoring. उसको monitor करना इतना expensive है. Fixed cost लगेगा. आप देखिए, बाइक में किसी को भेजो बैंकर को, उसको सैलरी देना पड़ेगा, पेट्रोल हर हफ्ते जाके कलेक्ट करना पड़ेगा. Monitoring expense is very high. So that's why it doesn't work out for banks. There is a very nice paper again. You know, again this is one more thing I'll keep. There is a जो आपके रीडर्स है, they can read it. And this paper is a very simple paper. It's by Banerjee and Duflo, Nobel laureates. Giving credit where it is due. इसका टाइटल है. So that is what they argue there. The problem is fixed costs of lending is so high for a monolithic large bank that despite having these opportunities, they don't lend. Now, if government can create an infrastructure जहाँ पे information है आपके बारे में, कुछ भी करके, NSSO करो, census करो, if I can get a sense of your income and your past transaction, like credit bureau है. Credit bureau में problem है कि आपका record तभी आएगा जब आपको लोन मिले. अगर लोन ही नहीं मिल रहा है तो क्रेडिट ब्यूरो में आप कैसे जाएंगे? तो मतलब क्या आपको इंडिविजुअल इनकम नहीं बट फैमिली इनकम भी चले? फैमिली इनकम, बिजनेस प्रोस्पेक्ट, कुछ भी दे हैव टू क्रिएट. यू नो, आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट. इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर मेड एन अनाउंसमेंट. ऐसा नहीं कि सरकार इस बारे में सोच नहीं रही. फाइनेंस मिनिस्टर मेड एन अनाउंसमेंट लास्ट ईयर इन द बजट दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट सम ब्यूरो फॉर द पुअर. बट उसमें गलती ये है कि जब वो ट्रांसलेट करके जो इम्प्लीमेंट करने के वक्त आएगी, दे विल ओनली क्रिएट ब्यूरो बेस्ड ऑन लोन्स. प्रॉब्लम ये नहीं है कि जिसको लोन मिल रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, जिसको नहीं मिल रहा है उसका प्रॉब्लम है. जिसको मिल रहा है तो अभी भी है सिबिल, वहां से ले लो. जिसको नहीं मिल रहा है, यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस. अब देखिए, स्वानिधि स्कीम आ गया. स्वानिधि, PM स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर स्कीम, इट्स एन अमेजिंग. हमने एक स्टडी किया बट आई कांट टॉक अबाउट दैट, कॉन्फिडेंशियलिटी व्हाटएवर. बट जो पब्लिकली अवेलेबल है, आई विल टेल यू, 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव गॉट अ लोन. 60 lakhs already under Swanidhi 60 lakhs. कितना एवरेज लोन कितना होगा? फर्स्ट राउंड में 10,000 है, सेकंड राउंड में 20,000, थर्ड राउंड में 50,000. ठीक है.
the 10,000 वाला हो चुका है and 30-40% are in the second round. Some have gotten the third round also. Now, what the government is, all that I'm asking for is some modification. What the government is thinking is, government is just focusing on उस 10,000 से उसको क्या फ़ायदा होगा. मैं ये कह रहा हूँ, ये 10, 20 और 50 जब वो रीपे करेगा ना, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होगा, you should be able to, banks are lazy, they're not using it. Some fintech or somebody should use it. अगर आदमी कोई स्ट्रीट वेंडर, उसमें आपको पता है डिफॉल्ट रेट इज अराउंड 12-13%. मतलब 87% ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स अनसिक्योर्ड लोन है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है. पैसा मोदी जी ने कहा कि बैंक ने सब दे दिया, कोई मॉनिटरिंग नहीं है. 87% ऐसे जाके पे कर रहे हैं. अगर उनको इफ यू कैन लेट प्रमोट फिनटेक्स, गिव दिस, मेक दिस डेटा, अभी ये डेटा बैंकों के पास पड़ा हुआ है. Of course, you have a credit score, but they are transactions and all that. And उसमें ये है कि digital 40-50% transactions are digital. अगर digital हुआ तो you have a sense of sales. So if you can promote digital, अब तो सब लोग use कर रहे हैं. If you can make it 70-80% digital, and उनका loan payment track record और ये digital transaction, ये दोनों अगर कोई fintech को मिल गए, you can assess उसका income क्या है. Then you will start lending. So I viewed Swanidhi as one way of solving this problem. But then it is not just giving loan. Mudra mein kya ho raha hai, just give the loan. Eventually this borrower should become so strong that markets will start lending at normal rates. That is the success of the program. Right? So I think they should go there. So these are the kind of initiatives. कैसे कर सकते हैं इसको? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना. तो आप मान लीजिए मैं एक स्ट्रीट में आई एम सेलिंग पानी पूरी or something and I have repaid these 3 loans. Right, I have repaid this loan and my digital transactions. ये सब data है ना. This should be made accessible to fintechs. ठीक है. Right, or even within banks you can carve out fintechs. SBI है, SBI Life है. SBI Insurance Life जो company है, it works like a private company. I have worked in insurance. I know they are as tough as a private company. They don't work like a government company. So either create a fintech dedicated towards this segment, which collects users data of these people and make sure that credit flows based on income and their past transaction. And तो मतलब एक आप कंटिन्यू करना है ये सेकंड पॉइंट. बट मैं ये कह रहा हूँ कि अब इन्होंने 87% लोग वापस दे रहे हैं, तो कैन वी बिना कोई प्रेशर के सी द गुडनेस एस्पेक्ट ऑल्सो ऑफ द कॉमन पीपल. वो भाग जा सकता था, he can just run away. Yeah, because nobody is monitoring. और इन लोगों को 87% लोगों को और एक्सेस दे सकते हैं क्रेडिट के लिए. उसको 1 लाख चाहिए, 10,000 से उसका नहीं चलेगा. he or she wants 8 lakh and 30-35% are women. आपका जेंडर ये भी हो जाएगा. 35% are women. It's an amazing scheme. But the point where I differ from the government, I am differing, last 2-3 years as policy. I feel these kind of schemes, these are not freebies. Yes. This is like infrastructure. Health, Ayushman Bharat is infrastructure. वो 10 लाख करोड़ में होना चाहिए. कौन कहता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? एजुकेशन इससे लॉन्ग टर्म क्या नहीं, वो 6-7,000 करोड़ का इट्स मीनिंगलेस. इट हैज टू बी एटलीस्ट 1 to 1.5 lakh crores to begin with. Yeah, to begin with, and make sure that you pay market rates. Yes. ऐसा नहीं कि लोगों को फोर्स करो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए. that was my argument also कि अगर आप हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत सारे इन्होंने, मतलब मैंने इसका एक क्राइटेरिया ये रखा था कि इसमें कितने सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इनरोल करेंगे. दैट विल बी द सक्सेस क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम. अब वो हमको पता चल गया कि वो आना नहीं चाहते क्योंकि इन्होंने जो मार्केट रेट्स हैं वो इतने कम कर रखे हैं कि किसी भी हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंसेस मीट करना भी नहीं है. तो मतलब अगर आप मान लो फोर्टिस हो, मैक्स हो, कोई और बड़ा हॉस्पिटल चेन है, आप दिल्ली बेस्ड हो या मतलब मेट्रो सिटीज में हो, आप टायर 2 टायर 3 टाउन में जाके हॉस्पिटल क्यों सेटअप करोगे? लेकिन अगर आपको मार्केट रेट मिल रहा है तो आप जाके करोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको पेशेंट का सर्कल बहुत बड़ा मिल रहा है. एंड दे विल डेफिनेटली गो टू अ मैक्स और मेदांता और ऑल दीज बिग हॉस्पिटल्स. So this allocation has to go up. So इसलिए मेरा कहना ये नहीं कि रोड मत बनाओ या एयरपोर्ट मत बनाओ. अगर आपके पास चॉइस है कि कहीं रैंडम जगह पे एयरपोर्ट बनाना है वर्सेस आयुष्मान भारत का एलोकेशन बढ़ाना है, मैं कहता हूँ इवन फ्रॉम अ फिस्कल पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इवन फ्रॉम अ फिस्कल मल्टीप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू, इसका बेनिफिट ज़्यादा है.
और ये दिखेगा भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सीधा दिखेगा, असर पड़ेगा लोगों से स्ट्रेट अवे। वो भी आई एम नॉट सेइंग एयरपोर्ट इज बैड, वो भी असर होगा बट बहुत स्लो होगा, बट इवन फ्रॉम अ प्योरली बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी पॉइंट ऑफ व्यू, Ayushman, and they have one. By the way, I have done a study. By the way, Ayushman Bharat has had जो भी अभी तक जो भी 22,000 23,000 करोड़ जो गया है अभी तक, उससे ही बहुत फर्क पड़ा है पिछले 4-5 साल में। What I find is, मैंने क्या किया उसमें भी 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया, पॉलिटिकल रीजंस, तेलंगाना, दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। पंजाब में हो गया इम्प्लीमेंट। अच्छा, So 4 states did not implement. अभी विड्रॉ किया है शायद अभी, बट जब पहले मेरा स्टडी प्री कोविड पहले 3-4 साल का, इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया और बाकी स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट किया। मैंने क्या किया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स से डेटा लेके आया मैंने क्रेडिट ब्यूरो से, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ दी स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड मान लीजिए असम। सो दे आर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स आर सिमिलर, राइट? एंड देन व्हाट इट इज, इसमें एक और रूल है, अगर आपका एग्रीकल्चर लोन इज मोर देन 50,000 देन यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने ये क्या किया कि मान लीजिए असम में somebody who's borrowed above 50,000 versus less than 50,000. Then the second comparison between same difference in West Bengal. You see, there is one difference in Assam. Someone who's eligible versus non-eligible. There is another difference in West Bengal, which is eligible versus non-eligible. Now the difference between these two differences, right? I studied, and what I find is the loan default rate है, जो गरीब है, Ayushman Bharat beneficiaries, their loan default rate has fallen by something like 1/3. पहले अगर वो 10% लोन पे डिफॉल्ट करते थे, अभी 3.5% हो चुका है। एंड दे आर बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मनी शार्क्स, बोरोइंग फॉर हेल्थ पर्पज, ऑल हैज गॉन डाउन। दिस इज अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। ये 7,000 करोड़ सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट हो चुका है अभी ऑलरेडी। वही मैं बोल रहा हूँ, ये 7,000 करोड़ से इतना इम्पैक्ट हुआ है। अगर 70,000 करोड़ अलॉट करोगे एंड लेट इफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स गो ऑन, द फिजिकल बेनिफिट, जो इनको आजकल यही भाषा बोलते हैं, फिजिकल मल्टीप्लायर। आई एम सेइंग फॉरगेट अबाउट सोशलिज्म, इवन द फिजिकल, अगर ये लोग, बिकॉज दे आर वेस्टिंग टाइम इन हॉस्पिटल्स, अनहेल्थ, इफ दे स्टार्ट वर्किंग, the productivity, poorer people are more prone to diseases, and if they are unwell, उनका तो इनकम ही खत्म हो जाएगा, प्रोडक्शन विल गो डाउन। हम जैसे नहीं है, we can work twice the other day and compensate, they can't do it. So the impact on GDP itself is going to be huge. So if you ask me where I slightly differ from the current thing is, I think it's only in the proportion of allocation. I would say allocate more for Ayushman Bharat. Allocate the Swanidhi kind of thing. They have the schemes. It's not that it's not there. Swanidhi ko aur bhi badhao. Don't see it as giving 10,000 to the poor. See it as building credible information about the poor so that markets can come and lend. So take the scheme towards there. So these are things that will benefit. Then the third one, there was a fabulous, and I spoke somewhere else also. Finance Minister said कि women self-help group they are going to promote in the last budget. एक और प्रॉब्लम है इंडिया में, फीमेल पार्टिसिपेशन रेट इज 20%, लेबर पार्टिसिपेशन। द ईजीएस्ट वे टू ग्रो और जीडीपी टू उसको बढ़ाओ। उसको आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि कहीं किसी को सीईओ बना दो कि बोर्ड में, ऐसा नहीं बढ़ेगा, वो वेरी फ्यू पीपल will go. That may help, but again very very long term. You have to, this self-help group is an amazing idea which is already there. It's not a new idea to promote employment among women. You घरेलू जो भी है आप बनाओ, लिचर पापड़ for example, it's amazing. Imagine how much employment it would have generated. So if you, and अगरबत्ती बनाओ, or small things. हमारे यहाँ, again I'm going back to, it's been 15 minutes I have not spoken about my place. There's a place called Dharmasthada. It's a temple. This is another topic of interest to both of us. Temple has promoted self-help groups. There are actually अगर small businesses को हम promote करने लगे ना, तो there is more probability कि women उसमें आगे आएंगी। And जो qualified नहीं है वो भी आ सकते हैं। ये see, there is only a small cream which is qualified. अगर आप उन्हीं को सब it will again go to only the cream among women. अभी जो टॉप डाउन अप्रोच है, पार्लियामेंट में रिजर्वेशन करो, उससे हो सकता है फायदा, बट these are this will have higher return on investment. So but ये जैसे आपने let me summarize, आपके people may be thinking ये लोग कहाँ से कहाँ गए। तो ये इतना हम डिस्कशन इसलिए हुआ कि मुझे लगता है कि 7.8 सही है, नंबर सही है मोटे तौर पे, बट देन कुछ हमको प्रायोरिटीज हैं, थोड़ा बहुत अभी
कोविड में ठीक था, कोविड में अगर कोविड में तो बहुत बढ़िया था, हाँ कोविड में तो ठीक किया, बट कोविड के बाद भी यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स also, and relative allocation for these now have to increase. They are not freebies. Ayushman Bharat is a correcting market failure. बेसिकली वही है ना, ट्रेड ऑफ है कि आप एक तरीके से सारा फोकस जो है, मतलब मेजोरिटी ऑफ फोकस की इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, विच इज़ गुड, बट उसमें से थोड़ा सा आपको इन सब जो टारगेटेड स्कीम्स हैं उन पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। 10 लाख करोड़ कहाँ, और ये तो छोटा मोटा, हाँ मतलब कम से कम एटलीस्ट हाफ उसका अगर आप बोरो करके भी शायद इन्वेस्ट इस पे लगाएंगे तो भी वो ज्यादा ही रिटर्न देगा, ये ज्यादा रिटर्न देगा। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आर्ग्यू। अब मैंने कहा ना, फिस्कल मल्टीप्लायर क्या है? फिस्कल मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि अगर 1 रुपये आप डालोगे, हाउ मच मोर जीडीपी इट जनरेट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर का फिस्कल मल्टीप्लायर, देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज, रेंज बिटवीन 1 विच इज नो मल्टीप्लायर, जैसे उस स्टडी ने मैं कहा, टू अराउंड 2.5। बट इसका जो है, जो इफ पुअर कैन एक्सेस क्रेडिट, इफ देयर हेल्थ इम्प्रूव्स, if their education improves, I told you right, this 5% a month, you know, it's double, you know, 5% of, there is one other study which talks about 20% of, you know, 3 times, 4 times, 5 times. Even fiscal multiplier is crazy. It is not it's a much better investment, but problem ये है कि once they launch a scheme, उसके बाद कंजूसी करते और they try to cut corners कि उसका प्राइस कम करो, डॉक्टर को फीस मत दो। वही राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी हुआ ना, कि इन्होंने अनाउंस कर दिया और उसके बाद उसका बजट कुछ नहीं रखा, बोले कि 400 जो सरकारी स्कूल में जो रेट है उसी का रिइंबर्समेंट हम प्राइवेट स्कूल में देंगे, तो बर्बाद ही होना था। तो उनके पास पैसा भी नहीं था। वो तो अब क्या हुआ, प्राइवेट स्कूल ही बंद हो गया, मतलब कि भाई इतना तो चल ही नहीं सकते। हाँ 2014 से पहले 9 to 14 वाज अ डिजास्टर। आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग 9 to 14 11 to 14। बट वही कंजूसी वाला जो माइंडसेट है वो भी मैं बता रहा हूं। पैसा भी नहीं था, अभी तो है। सी द डिफरेंस देयर इज, इवन इफ दे वांटेड देयर वाज नो मनी, दे वर इंडिया वाज वन ऑफ द फ्रेजाइल 5 कंट्रीज, राइट? आपको याद होगा कि उस टाइम के न्यूज़ ये आ रहे थे कि ये क्या है, ब्रिक्स में से इंडिया को निकाल के इंडोनेशिया को डाल दो, एंड आई रिमेंबर रीडिंग ऑल दोज न्यूज़ दैट टाइम। और अभी हम G20 होस्ट कर रहे हैं, तो दैट वाज अ डिफरेंट। 11 to 14 से हम बहुत आगे निकल चुके, वो तो कंपैरिजन ही नहीं है। बट देन आई एम सेइंग इवन नाउ यू कैन स्टिल थिंक अबाउट दीज थिंग्स मोर देन समथिंग लाइक अ फूड सब्सिडी। आप 10 kg 5 kg लोग उसको दे आर सेलिंग इट इन ओपन मार्केट। और ये बात भी है कि ये सरकार कर सकती है इस चीज को, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी थॉट इन द राइट डायरेक्शन। यस, इट्स जस्ट अबाउट द अमाउंट, या प्रोपोर्शन। और ये मतलब दूसरी आएगी तो वो कोई और सरकार आए और वो आए तो वो सोचते हैं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, जिसमें यू हैव बेसिकली पनिशिंग द प्राइवेट सेक्टर। दैट्स you pass a law, that's easy, right? I pass a law that everybody has a right to cancel treatment. तो क्या उसके बाद कुछ पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे नहीं होगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दोस। आसान होता तो प्रॉब्लम सॉल्व होता। दैट्स द सेकंड थिंग आई वरी, यू नो, आई वांटेड टू से दैट ओनली। आई डोंट केयर हु एक्चुअली विंस एंड रन्स, बट द प्रॉब्लम इज if you do only long term things and bring a state to a very good fiscal health, you will find someone who will promise all kinds of freebies and destroy it and go over it. That is a bigger fear. If that second person also happens to be a Naveen Patnaik or someone, it's still okay. ऐसा नहीं होता, because इनको तो पता है यहाँ पैसा है। तो वही है, इसमें एक वो डिसइंसेंटिव भी है कि आप जितना अच्छा करके लेके जाओगे एक स्टेट को, तो अपोजिशन वाले उतना ही बड़ी सब्सिडी देने के लिए प्रॉमिस कर सकते हैं, क्योंकि पैसा है। अगर वही मैं कह रहा हूँ ना, आज बिहार में नो अपोजिशन कैन प्रॉमिस 2000 रुपीज अ मंथ, कहाँ से करेंगे? और हरियाणा में देखो आप, ओल्ड एज पेंशन जो वो एक बोल रहे हैं 6000 देंगे हम महीने का ओल्ड एज पीपल के लिए, और कोई बोल रहा है 7 देंगे, हम 7.5 देंगे। तो ये सब सम ओल्ड एज विडोज, फिजिकली चैलेंज्ड, उनको दे दो। आई थिंक इट्स स्टिल ओके। मतलब नॉट एवरीवन हु आर इन, द प्रॉब्लम इज this giving it to everyone, irrespective of whether you're and excluding this poor income tax fellow. Only thing they find to exclude is the guy who pays income tax. I think ये इंसेंटिव हम उस तरीके से सोचते हैं कि who needs help in the sense who is weak, who is disadvantaged. हम ये इंसेंटिव देते समय ये नहीं सोचते सरकार कि किसको देंगे तो ज़्यादा हमको इन्वेस्टमेंट एज अ कंट्री उसको बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वनिधि वाला बोला, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो काम करना चाहते हैं, दैट इज अ वर्क फोर्स,
ठीक है, आप उन पे इन्वेस्ट करोगे, दे विल रिटर्न इट मोर। श्योर, ठीक है, तो उसी तरीके से हमको सेगमेंट्स जो है पॉपुलेशन अमेजिंग, मतलब किसी ने भी ये सोचा है, मतलब पहले सम ऑफिसर और सम गवर्नमेंट में somebody would have thought about it. Hats off to this person. You know, at least the approach. And आपको पता है, किसी को, हमें पता नहीं कितने लोग हैं. We have no idea how many street vendors. In India, we have 24-25 crore families. I think around 1.5 crore families are street vendors. This is my rough estimate. तो अभी 60 लाख लोगों को मिल चुका है. My only problem is इसके ऊपर फोकस और ज़्यादा होना चाहिए. This is amazing. आप सोचो, आप उसका रिकॉर्ड बना रहे हो, उसका कुंडली बना रहे हो, डिजिटल के 40-50% डिजिटल, यू हैव एन आइडिया हाउ मच ट्रांजैक्शन दे आर डूइंग, एंड देन यू आर कलेक्टिंग देयर लोन रिपेमेंट डेटा. इफ दिस पर्सन कैन बोरो फ्रॉम बैंक्स एट नॉर्मल रेट, जिस रेट पे मैं और आप बोरो कर सकते हो, एंड हिज रिटर्न्स आर लाइक आई टोल्ड यू 7-10% अ मंथ, दे विल ग्रो लाइक क्रेजी, दे विल डबल देयर बिजनेस. उनका जो मंथली इनकम होगा डबल होगा, उसका मंथली इनकम डबल होने का मतलब जीडीपी, GDP भी बढ़ेगा. True. So even from that point of view, it's amazing. So they should think about such plans. हाँ, hopefully मतलब और targeted segments जो announce किया, मैंने डिटेल नहीं देखा, but हो सकता है वो भी ऐसा ही हो, कुछ स्किल का कुछ है. होगा, इलेक्शन ईयर है तो काफी कुछ चीजें नहीं देखा विश्वकर्मा. But these are things that will not only help in elections but also economically. Yes. So that is a good thing. That's a good thing. थैंक यू सर, आप आए और इतनी बातचीत की. हमेशा आपसे बात करने के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं. नए प्रोस्पेक्ट्स, नए एस्पेक्ट्स जो इकोनॉमी के हैं, वो हमारी भी आंखें खुलती हैं कि ये भी है एक एस्पेक्ट. तो आपने जैसे बताया कि ये सब हो रहा है और ये सब जो हम कर सकते हैं सरकार, तो होपफुली कोई सुने सरकार में आपकी. द राइट पीपल शुड लिसन, लेकिन कुछ करते नहीं. Hopefully कुछ करें भी. Thank you so much sir. Thank you. And this time you might have noticed मेरा 30-40% हिंदी तो आ गया. हाँ, नहीं, अगली बार जब आएंगे तो फर्राटेदार दिल्ली वाला इंग्लिश हिंदी होगा आपका. Thank you so much sir. चलो, thank you.